Good morning, friends. So today we are going to discuss on security lending and collateral management part. So this is very important. Most of you guys knew about security lending, but I'm sure there are a huge number of crowd they are unaware about the security lending and collateral management. So we will be discussing in this session on the what is security lending and how it works, who are the participant to the security do the security lending in the market, and why the security lending is important or why they do it. So we'll be looking all the aspect of the security lending and collateral management in this session. So I hope you would like to drive with me on this session, and of course if you watch this session till the end, definitely it will help you a lot to grab the knowledge. Okay, so without taking your time a lot, we'll start to the main point and we'll discuss one by one. So what is security lending? Security means what exactly? Security means the financial instrument, right? Financial instruments. Lending means what? उधार देना, राइट? उधार देना ही हुआ. उधार देना या लेना, लेंड करना है, उधार देना है किसी को. Why we want to lend it? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपको लेंड क्यों करना है, बैंक पैसा देती क्यों है, लेंड क्यों करती है आपको? ऑफकोर्स दे वांट टू अर्न द इंटरेस्ट इनकम ऑन देयर सिक्योरिटी और ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. तो इसकी वजह से बैंक आपको लोन देती है, राइट? या फिर आप ब्याज के पैसे क्यों देते हो किसी को? द रीजन इज, ये लेन जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कॉमन लाइफ? अगर आप क्रेडिटर हो, किसी को भी क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, तो क्यों देते हो? तो वो भी एक लेंडिंग है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 1,000 रुपए दिया, 1,000 रुपए दिया 2 महीने के लिए. तो उसमें आपने डिसाइड ये किया कि 200 रुपीज विल चार्ज इंटरेस्ट रेट ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? वो क्या है? सो इट इज द रिटर्न ऑन योर लेंडिंग इन्वेस्टमेंट. तो आपने किसी को लेंड किया है और आपने उस पर पैसा चार्ज किया है. सो मैं इसको और एक कॉन्सेप्ट जो अटैच करूंगा, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग. सो दिस इज द एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60% 60% companies earn their higher, or investment banks earn their higher rate of return through this security lending and borrowing activities. 60% and 40% through their normal operations. So this is very important, right? So हम देखेंगे कि अभी क्या है. Margin required and mark to market and recognition, reconciliations, everything is there. So we'll discuss in details one by one. Okay, so what is security lending and how it works? Security lending is the process where temporary transfer of securities could be stock, bond, currencies, paper, all kind of financial instrument called the securities. But here we are gonna be looking stock, securities, equity shares or preference shares and all. Only the tradable securities we are going to see here. जितने भी tradable securities है, उनकी lending कैसे होती है, we are going to look that only. Okay, so from one party lender to another party borrower. So those participants are very significant in this activity. Without these two participants, this particular activity is incomplete. Against the collateral means what? Of course collateral means, अगर मैं
उसको हिंदी में कहूँ तो एक ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट में हम कुछ रख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन कर रहा हूँ तो होम लोन के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो मैं कोलैटरल दे रहा हूँ अगेंस्ट की जो जिसकी वैल्यू के हिसाब से बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड लोन टू मी, राइट। तो ये कोलैटरल है। अगर मैं सिक्योरिटी में बात करूँ तो अ, एक इन्फोसिस की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 10 रुपए की, उसी में अगर एक टीसीएस की सिक्योरिटी है तो इन इन्फोसिस की सिक्योरिटी के बदले में टीसीएस की सिक्योरिटीज दे रहा हूँ, यानी कि इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ बैंक को एज ए गारंटी के तौर पर या फिर एज ए कोलेटरल हम बोल सकते हैं, कोलेटरल के तौर पर। तो उस एक्टिविटी को हम या फिर उस चीज को वी आर गोइंग टू टैब एज अ कोलेटरल, राइट। And for the benefit of both the parties in the form of commission and obligation respectively. So this is again most important. Most of the people, maybe you have a question in your mind, why we do the security lending. Of course, the major or the moot question is to earn commission, to earn commission, right, to earn income, to earn revenue, right. So because of that they do the, or they allow the, the lending of securities. So this is very huge or wide activity, right. And how it works, obligation is the part ki, for example, okay, so obligation part is something जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है एमआईएस ट्रेड की और सम टाइम दी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, कस्टडियंस की, उनको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टॉक्स दे शुड बी दी अवेलेबल इन देयर अकाउंट to the respective time or at the time of auditing or reconciliation and all. So उस टाइम पे अगर वो रिस्पेक्टिव पोजीशन अकाउंट में होल्ड नहीं है, so it could be the matter of breach of investment banking laws and also for that matter regulators can take respective action on that particular banks, and for that matter they need a security for a temporary position. तो इसलिए वो ऑब्लिगेशन का पार्ट मतलब कि कोई दो हुआ, एक कमीशन का और दूसरा ऑब्लिगेशन का। सो उसमें ये तो हुआ जेनेरिक एक टर्म है, इसकी वजह से हम सिक्योरिटी लेंड करते हैं या बोरो करते हैं। अभी हम ये देखें कि लेंडर कौन हो सकता है, हु दोज आर द लेंडर इन द मार्केट। could be the custodian, for example, if I take a name of BNY, right, then Bank of America, then Deutsche Bank, for example. So those are the custodian. Prime brokers, investor, prime brokers again जो trading firms है, trading firms है, again you can take the custodian could be the prime brokerage or investor also. देर इज नो नीड कि अगर ये कोई कस्टडियन है तो कोई प्राइम ब्रोकरेज नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। एक ही बैंक मल्टीपल रोल प्ले कर सकती है, वो इन्वेस्टर भी हो सकती है, प्राइम ब्रोकर भी हो सकती है और कस्टोडियन भी हो सकती है। बोरोअर्स कौन हो सकते हैं, जो कि शॉर्ट सेलर्स है, जो अगर मैं बात करूं तो कोटक सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, जीरोदा, इवन या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, आप हो, मैं हूं, who those are actively doing trade in the or trading in the market, those are the short seller। उनको जरूरत हो, समझो कि शॉर्ट सेलिंग करना है, किसी ने एमआईएस में पोजीशन ली, किसी को रखना है या फिर किसी ने कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ऐसे कोई फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में वो लोग दे हैव एंटर्ड इन ए डेरिवेटिव एग्रीमेंट एंड ऑल, सो दे वांट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे वांट टू बोरो द सिक्योरिटीज फॉर अ टाइम बिंग, राइट। तो कोई भी हो सकता है। या फिर सेकंड थर्ड थिंग है स्टॉक, राइट, कंपनी स्टॉक, एनी कंपनी स्टॉक, जरूरी नहीं कि ऐसे कोई स्पेसिफिक कंपनी का स्टॉक हो, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टॉक जो है वो स्टॉक के ऊपर ही सिक्योरिटी लेंडिंग होता है।
प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का. And the very important concept is collateral. Collateral means what? Security against borrowed stock and securities. तो क्या क्या हो सकता है उसमें? Either cash हो सकता है या फिर positions. Position again, don't be confused. Position means stock, of course. Right? तो ये दो चीजें हो सकता है. Process of security lending, एक lender और दूसरा borrower, right? So let's see. Lender, then borrower. These are two participant. Lender का, so what is the role of lender? Stock against collateral for commission. ये जो lender रहेगा इसका पर्सपेक्टिव उद्देश्य यही है कि कमीशन अर्न करने के लिए अपने सिक्योरिटीज को देना, राइट? देन बोरोवर का फंक्शन ये है, रिटर्न द स्टॉक ऑन अग्रीड डेट. सो अग्रीड डेट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली हियर? अग्रीड डेट मीन्स माय डियर फ्रेंड, कोई भी सिक्योरिटीज जो देता है एक टाइम के लिए देता है, राइट? फॉर वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, जो भी है, और उसमें इन दैट अग्रीमेंट डेफिनेटली यू वुड सी द डेट, एग्जैक्ट डेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे 1 महीने बाद की हो, 2 महीने बाद की हो, वो डेट देता है. उस डेट को यू आर एंटाइटल्ड और लीगली यू आर obliged to return that security to the lender on that particular date, right? ये तुम्हें करना ही करना है. You can't miss the deadline. So this process is very crucial. This process is very critical. This process is very significant to make the maintain the trading decorum or environment in the market. If you have committed to return that security on a particular date or agreed date, that means you should have to return that security within that particular time frame. If you are failed to deliver the securities on that particular date or agreed date, it means it's the breach of agreement what you have been made in both of you, lender or borrower, right? So the date is very crucial. On this date, you have to transfer or deliver the securities to the lender. So this activity again is very important. ये तो आपको पता चला कि लेंडर का इंटेंशन यही है कि सिक्योरिटीज के ऊपर कमीशन अर्न करने के लिए सिक्योरिटीज दे रहा है. और ये जो डेट है, जैसे कि मानो आज उसका अगर डेट है, तो आज के दिन borrower is entitled or is obliged to pay the or return or deliver the securities to the lender on this date without failed, right? और ये एक्टिविटी यहाँ पर ऐसे प्रोसेसिंग ये ऐसी चलती है, साइकिल जो ऐसी चलती है, right? Then who are the participant? So this is again important. You should know who those are the participant or who can be the involved in the security lending activities. You should also aware about this. So we'll discuss who can be the lender. First of all, custodians. Of course, custodian means I have mentioned earlier Bank of New York, JP Morgan, Morgan Stanley, then State Bank of India also. Those are the the custodians who can maintain the securities of their client on behalf of them. Or custodians in a layman language, custodians, the role of custodian is to to provide the protection or safeguard to the securities of their client. कोई भी बड़े बड़े कंपनीज होती है, टीसीएस के जैसे कंपनी है, इन्फोसिस के जैसे कंपनीज है, टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज है, दोज कंपनीज
अपना जो स्टॉक है कस्टोडियन के पास रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं उनको फॉर अ सेफ की पर्पज। तो वो जो कस्टोडियंस है, जब कोई कंपनी अपना स्टॉक सेफ की पर्पज के लिए रखता है, तो वही स्टॉक कुछ शॉर्ट टर्म के लिए वही स्टॉक सेल करती है, बेचती है। एंड बेचती इन द सेंस कि नॉट अ परमानेंट, वो कुछ समय के लिए उधार पे देती है और उसके ऊपर कमीशन लेती है जो लोग उधार लेते हैं, यानी कि बोरोवर से सिंपली, राइट। असेट मैनेजर्स है, लाइक म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड ऑल, दोज कुड बी द लेंडर्स, राइट। देन थर्ड पार्टी लेंडर्स है, कोई थर्ड पार्टी लेंडर्स, कोई भी कंपनीज हो, ये एक ही कंपनी इतने सारे रोल प्ले कर सकती है, जरूरी नहीं कि उसमें अलग अलग कोई नेचर हो। एलएलपीज है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स वगैरह, या फिर कंपनीज है जो कि म्यूचुअल फंड वगैरह हाउसेज जैसे यूटी एंड ऑल जो मैनेज करती है, राइट। या फिर कोई जीरोदा के जैसे, या फिर कोई शेर खान के जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ऑल है, वो कंपनीज भी दे कैन आल्सो डू द लैंड, राइट, अगर उनके पास सिक्योरिटीज इतने पड़े। प्राइम ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स भी दे कैन आल्सो डू द लैंड, अगर उनके पास कोई सिक्योरिटीज पड़ी है तो ऑफ कोर्स दे कैन एंटर इन द सिक्योरिटी लेंडिंग एक्टिविटीज। देन अदर फॉर्म्स, अदर सिक्योरिटी फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी कंपनीज आती है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो दूसरी कोई फॉर्म में आती है, तो वो कंपनीज आल्सो दे कैन डू दी security lending activities, right? Or from a borrower side, we have to do three options who can do the borrower short sellers, जो कि short sales means हमें ये पता है कि एम आई एस मतलब जो कि हमारे जितने भी ट्रेड्स है, इंटरडे ट्रेड्स बोलते हैं हम उसे, तो वो ट्रेड्स के लिए भी समटाइम्स शॉर्ट सेल पे सिक्योरिटीज लेके ट्रेड करती है, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं उनके, राइट। और उसी के थ्रू वो लोग भी जो बोरोड सिक्योरिटीज है उनके ऊपर इनकम अर्न करते हैं, कैपिटल गेन अर्न करते हैं, या फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, जस्ट टू कि एंटाइटलमेंट डेट पे अपनी पोजीशन सिक्योर करना है और कॉर्पोरेट एक्शन के बेनिफिट भी लेना है, तो पर्पज कुछ कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज नो सच लिमिटेशंस कि भाई किस पर्पज के लिए वो शॉर्ट सेल कर रहा है, बोरो कर रहा है, राइट। ये बोरो करने वाले का पर्पज है कि वो किस लिए कर रहा है। हो सकता है कि उसके फॉर्म में आज रेगुलेटरी का ऑडिट हो, या फिर वो टाइम की पर्टिकुलर टाइम पे उतना स्टॉक अवेलेबल चाहिए, कुछ भी रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। सेकंड थिंग ये इंपॉर्टेंट है, अवॉइडेंस ऑफ सेटलमेंट फेल्यूर। अगर उसने किसी ने समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लो, मुझे अगर किसी ने 100 सिक्योरिटीज मांगे थे, बट मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, टाटा कंपनी के मेरे पास अभी 100 शेयर्स है, बट कोई क्लाइंट है उसको मुझे 200 शेयर्स ट्रांसफर करना है आज के आज, राइट। तो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास आएंगे बट अभी नहीं है, या फिर मैंने किसी और को दिए थे, मुझे लगा था कि इसको नहीं करना है, बट आज उसने बोला कि मुझे 200 शेयर्स चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू देन इन दिस केस? Definitely, I can approach to any custodians or asset manager or third party lenders or prime brokers to ask to lend their securities for on a commission basis, right? So definitely, I'll take the 100 securities from lender and I'll settle that securities to the respective counterparty जिसको भी चाहिए, because ये settlement date अगर fail हुआ तो it is very critical, maybe he will have to face to the regulatories also and their actions। तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि चेक बाउंस होने पर जो हालत हमारी होती है, तो सेम वे, या फिर ये इंस्टॉलमेंट वगैरह जब बाउंस हो जाता है, हम पे नहीं कर पाते हैं, तो जो हाल होता है सेम हाल इस केस में भी होता है। तो इसलिए अवॉइडेंस ऑफ सेटलमेंट फेल्यूर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस केस में भी शॉर्ट सेल होता है और इसलिए करते हैं। और प्रॉपर्टी ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो है वो भी एक शॉर्ट बोरोइंग वगैरह करते हैं लेंडर से, और उनके भी पर्पस कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अभी ये मोस्ट ऑफ द पीपल, यू मे हैव अ क्वेश्चन व्हाई वी डू दिस,
राइट। तो मैंने पहले ही बोला है कि इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, आप किस पर्पज के लिए करना चाहते हो। जस्ट एज्यूम इट यू आर द ट्रेडर और यू आर द द पर्सन्स वेयर यू आर इन्वॉल्व इन सच ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ऑल। तो व्हाई यू वांट टू डू इट, सो आई विल आस्क क्वेश्चन टू यू, राइट। तो जो भी आपका उद्देश्य रहेगा कि आपको किस चीज के लिए करना है, क्या करना है, सो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप कमीशन देके वो एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हो, उस एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, राइट। सो उसमें दो रीजन है यहाँ पर, लेंडर्स लेंड सिक्योरिटीज अगेंस्ट कोलैटरल ऑन कमीशन, राइट, एंड बोरोवर विल डिपॉजिट द इक्वल वैल्यू ऑफ कोलैटरल कैश एंड स्टॉक। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, लेंडर ने समझो मानो सिक्योरिटी देना भी चाहा कमीशन पे, बट स्टिल मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ तो कवर चाहिए, कुछ तो इंश्योर्ड ऐसी कोई चीज चाहिए या फिर एश्योरेंस चाहिए कि तू देगा, राइट। तो अगर समझो मानो मैंने सिक्योरिटी लैंड पे दे दिया और आपने टाइम पे रिटर्न नहीं की, राइट, या फिर यू फेल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीमेंट ऑन अग्रीड डेट, तो स्टिल उस केस में मेरा जो रिस्क है बढ़ जाता है, यानी कि लेंडर का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके चलते कोई भी कंपनी, नोबडी वांट टू टेक द रिस्क। तो यहाँ पर कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है डिजाइन किया वाला है, तो विल सी दैट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड एम टू एम मार्क टू मार्केट रिकंसिलिएशन, मार्क टू मार्जिन, मार्केट टू मार्जिन और मार्क टू मार्केट, यू कैन से मार्जिन रिक्वायरमेंट। On 15th of Jan 2019, broker lends the Infosys stock worth rupees 2 million against the collateral value of 2 million worth of stock of the other companies and cash, right। एक तो आप कोलैटरल में क्या रख सकते हो, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एक तो आप सिक्योरिटीज किसी दूसरे कंपनी के या फिर कैश, राइट। अभी इस केस की अगर मैं बात करूं तो लेंडर है मेरा, इन्फोसिस स्टॉक लेंड हो रहा है, और बोरोवर है, तो उसने क्या किया कि पुट कोलैटरल एज अ टीसीएस का स्टॉक उसने सेम वर्थ और वैल्यू का रखा है, राइट। सो जो डेट है 15/1/2019, 2 मिलियन का एक अग्रीमेंट है, बोरोवर ने 2 मिलियन, यू कैन सी हियर ये चीज। मार्जिन कॉल वैल्यू जो 0 है, राइट, नो कॉल फॉर एक्स्ट्रा मार्जिन। ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। सेकंड 16/1/2019, लेंडर की वैल्यू 2 मिलियन, बट बोरोवर की जो वैल्यू है स्टॉक की 1.8, यहां पर मार्जिन कॉल रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर ऑफकोर्स 0.2 से जो वैल्यू स्टॉक की कम हो गई है, जो बोरोड स्टॉक जो एज अ कोलैटरल तौर पे रखा था उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो इस केस में कॉल लेना पड़ेगा, कॉल फॉर 2 मार्जिन। यहाँ पे अगेन 17/1/20 पे जो लेंडर 2 है, लेंडर के स्टॉक की वैल्यू सेम है, और जो बोरोवर है उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 2.1 मिलियन, यानी 0.1 का क्रेडिट करना पड़ेगा बोरोवर के अकाउंट में, राइट। So how it's how the respective transaction work like this. The reconciliation कैसे रहेगा, after the calculation of mark to market. Mark to market means जो on a daily basis जो market में stock की prices रहेंगी, either profit or loss, उसको maintain करने की जो प्रोसेस होती है उसको मार्क टू मार्केट बोलते हैं, कि मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, राइट, बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। broker lent and collateral value of stock which borrowers kept with broker, both value should equal। मतलब as simple as that, दोनों भी स्टॉक के प्राइसेस इक्वल होने चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो एक दूसरे को कॉल देना पड़ेगा, कॉल देना पड़ेगा मतलब ऑफसेट करना पड़ेगा, राइट। अभी आप बोलोगे कि ये प्रैक्टिकली सर ये कैसे होता है, तो ये प्रैक्टिकली यहाँ पर एक मार्जिन अकाउंट होता है, कोई भी कंपनी नॉर्मल जैसे सेविंग अकाउंट होता है, तो यहाँ पर भी एक मार्जिन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। मार्जिन अकाउंट में दे रिकॉर्ड ऑल द ट्रेड वैल्यूज
और ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑन अ डेली बेसिस। अभी इस केस में अगर मैं पहले 15 तारीख को एंट्री किया हो गया अकाउंट में, यहाँ पे इस केस में दोनों भी वैल्यू जो है सेम है, यानी कि दोनों भी स्टॉक की वैल्यू जो है 2 मिलियन है। तो उस केस में जो इफेक्ट है जीरो है, यानी कि कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उसने जो बुक में एंट्री होगी नो, मतलब कुछ होगा ही नहीं, एंट्री कुछ होगा ही नहीं। बट 16 की अगर मैं बात करूँ डेफिनेटली, तो यहाँ पे यू कैन सी द शॉर्ट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख से सिक्योरिटी शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स है इसका मतलब ये है कि इसमें कॉल लेगा, जिसने सिक्योरिटीज दी है वो बताएगा कि भाई ऑलमोस्ट 2 लाख का शॉर्ट्स है सिक्योरिटीज वैल्यू में, राइट। तो यहाँ पर वो लेगा, मतलब 2 लाख ऑफकोर्स डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, जो जैसा एग्रीमेंट डिजाइन है उसके बेसिस पे। अगर मैं 17 की बात करूं, तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें कि 0.1 यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख का एक्स्ट्रा जो टीसीएस के शेयर्स है इस केस में बढ़ गए हैं। बढ़ गए इन द सेंस कि इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया है तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ऑफकोर्स यू शुड हैव टू हाईलाइट एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द बोरोवर्स अकाउंट, क्योंकि बोरोवर्स का पैसा है बोरोड सिक्योरिटीज पे, लेंडर की सिक्योरिटीज पे लेंडिंग का पैसा जो रहेगा और जो वैल्यू रहेगा यू शुड हैव टू हाईलाइट दैट इन दैट वैल्यूज इन लेंडर्स अकाउंट, राइट। सो दैट शुड बी लाइक दिस। तो ये एक दूसरे का बैलेंस एट द एंड में ये लोग नेट करते हैं, ऑफसेट करते हैं। तो उस केस में अगर समझो यहाँ पे 18 को या फिर 17 को रिटर्न डेट है, डेट रिटर्न करते टाइम जो वैल्यू रहेगा, अभी ये मैं 2 - 1 करूँ तो ऑलमोस्ट -1 रहेगा। तो अभी एक दूसरे को दे रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज दे रहे सिक्योरिटीज ले रहे, तो जितना एज इट इज है। बट डिपेंड करता है कि दोनों भी स्टॉक का मार्केट ट्रेंड क्या है और किस बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ है। ताकि अगर ये लेंडर के पास सिक्योरिटीज है समझो और इन्फोसिस के, और इन्फोसिस का स्टॉक डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है मतलब कुछ न्यूज ऐसे आए कि कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ तो ऐसे चेंज हुआ है या फिर कुछ फ्रॉड ऐसे किया है, कुछ लीगल इशू चल रहा है, इसकी वजह से इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हुआ है टुवर्ड्स द इन्फोसिस स्टॉक, और नाउ दे वांट टू सेल आउट देयर स्टॉक एंड एग्जिट द पोजीशन फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो अगर ये सिक्योरिटीज आपके पास है इन्फोसिस की आपके अकाउंट में अभी तो यू वुड हैव सेल्ड इट, राइट। आपने भी एग्जिट किया होता, और ये अपने अभी अगर किसी और को टेम्पररी पोजीशन के लिए दिया है ऑन अ कमीशन बेसिस, तो उस टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट। सो इट मीन्स कि जितना भी लॉस होगा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए कि जो अग्रीमेंट डिफाइन होगा किस बेसिस पे होगा, क्या करना होगा, सो पूरा एक फ्रेमवर्क होता है। इसलिए ये डिप में मैं नहीं जाऊंगा, अभी डिप के लिए और एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जैक्टली द वर्क जो पूरा सिक्योरिटी लेंडिंग है होता है। हमने पूरे एस्पेक्ट कवर किए हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज सिक्योरिटी लेंडिंग ये है। ये पीपीटी में आपको चाहिए तो मैं शेयर करूंगा इसके साथ। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटी लेंडिंग, वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो अगेन व्हाई सिक्योरिटी लेंडिंग। ऑफ कोर्स द इंटेंशन इज टू fulfill the agreement, or either they want to earn the commission on their securities, ये भी हो सकता है। and what is margin requirement and mark to market or mark to margin and reconciliation, we have seen this also, right. So this is very sweet, simple and reliable information. You can refer this, and definitely this will help you to clear your doubts whatever you have in mind. And still if you have any doubts, I'll share my contact details with you, so you can reach out to me on my WhatsApp number or on my email ID also, so we can discuss it. Before end this session, I would request you guys, if you like this information, if you like this session, don't forget to put a comment and like this video. ये मैं इंफॉर्मेशन फ्री में दे रहा हूँ, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू यू। बट येस, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है तो इन रिटर्न ऑफ दैट, पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, बट आई एम जस्ट it's humble request to you guys, you can put a comment or you can put a suggestion of course, and as well as you can subscribe this channel। तो मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा। माय इंटेंशन इज कि
अब बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जाने का ख्वाब देखते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो द स्टेप हाउ टू गो और हाउ टू एंटर इन इट। बट मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू लैंड इन सॉफ्टली लैंड इन दी big MNCs like TCS, Infosys, Bank of America, JP Morgan, Northern Trust, uh, BNP Paribas and all, राइट, मॉर्गन स्टैनले। तो हेल्प होगा। मैं बनाऊंगा आगे, वीडियो पोस्ट होते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेके मैं आपका समय आपने दिया, धन्यवाद। और मैं भी अभी एंड पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और bear me for next time.